Good morning, ladies and gentlemen. As we begin this new day and a new week, we are honored to be part of this interactive meet or event on minority welfare. To begin with, let's all rise and pray for the divine blessings to unfold on each one of us. I request the college choir to lead us into prayer. Thank you, choir, for your capitulating hymn. We are eager and enthusiastic to drive away the emptiness on the days. We have with us this morning Srimati Rinchen Lamo, the Honorable Member of the National Commission for Minorities, NCM, Government of India. Our Principal, Reverend Dr. Father Praveen Martis SJ, our Registrar, Dr. Alvin Desa. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, may I request our Principal, Reverend Dr. Father Praveen Martis SJ, to bring them on stage. Thank you, Father. No feeling is as better as a born homey feeling. To welcome us all, I call upon our Registrar, Dr. Alvin Desa, to proceed with the welcome address. A very good morning to each and every one of you. Today we are in a special context wherein a unique and special event is going to take place. We have all gathered here to have an interaction with a person of eminence who has come all the way to Mangalore. I hear that it is her first visit to Mangalore, though she has been visiting Karnataka quite a few times. 3 times she has come. This is the first visit to Mangalore. Therefore, it is our privilege to welcome her to our midst as she comes for the first time. She is on a tour of Karnataka state for the last few days. She has reached here on the 13th and she will be continuing to be visiting the institutions of minorities in Karnataka for the next few days. She is our esteemed chief guest today and we are very privileged to have her with us. That is none other than Srimati Rinchen Lamo, Honorable Member, National Commission for Minorities, Government of India. On behalf of all of us gathered here, from the management, principal, staff and students, a warm welcome to you, madam. May I request for the principal to offer her a floral welcome. If you have to give one name to our country, it is diversity. We are a diverse country with different kinds of people, of different colors, hues. Every campus like St. Aloysius College is a mini India, where we have several groups of people from various countries and cultures. It is a multicultural campus. Our principal has been very keen on identifying people belonging to different categories of cultural practices, states, languages, and other denominations, so that each one of these groups is taken care of. He personally calls them in groups, tries to listen to their issues and concerns, and thinks through the management what can be done to these people who arrive at our campus with the different cultural backgrounds. On behalf of all of us, I would like to welcome Reverend Dr. Praveen Martis SJ, our beloved principal. A warm welcome to you, Father. We have with us Mr. Jigme Saltrin, the Chief Representative of Central Tibetan Administration. A warm welcome to you, sir. We have also with us Avikshit Rai,
proprietor, global expert, a warm welcome to you. We also have with us the liaison officer for this entire 7-day visit, Minority Extension Officer, Mr. Ravindra. A warm welcome to you. I would like to warmly welcome Mr. Yashodhar, who is the District Manager, Karnataka Minority Development Corporation. A warm welcome to you, sir. I would like to welcome the directors, deans, heads of the departments, and members of the faculty, and all of you students belonging to different denominations of minorities in India, Students' Council members, and all of you gathered here. Let us have a wonderful interactions with Madam. Thank you so much. Thank you, sir. Welcome you too. Now I request the key speaker, Srimati Renchin Lamo, the Honorable Member of the National Commission for Minorities, Government of India, to address us all. It will also be followed by the interaction session. Over to you, Madam. Good morning. Venerable Father, faculty members, CRO sir, Avikshit ji, officers, and my dear students. आज पहली बार बेंगलुरु आने का जो मौका मिला, ख़ासकर आप लोगों से इंटरेक्शन करने का जो मुझे मौका मिला, और मुझे यहाँ आकर ये पता चला कि आप लोगों की छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर यहाँ बुलाया गया। उसके लिए मैं फादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। यहाँ पर आने के बाद आपके जो कॉलेज के सॉन्ग, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम नेक रास्ते पे चलते हैं। हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो। यही स्पिरिट आप बच्चों में होना चाहिए, यही खूबसूरती है। एजुकेशन का मेन मोटो यही होना चाहिए, तब जाकर हमारा देश जो है आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम जितने मर्जी बड़े से बड़े डिग्री लेंगे, अगर ये फीलिंग, ये मोटो अगर हमारे अंदर ना हो कि भूल से भी मेरे से कोई भूल नहीं होना चाहिए, इंटेंशन हमारा साफ ना हो, तो चाहे आप जो मर्जी बड़े से बड़े पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए, एक करप्ट ऑफिसर बनते हैं, करप्ट डॉक्टर बनते हैं। हम सुनते हैं कई जगह पर, न्यूज़ में देखते हैं हम कि किडनी बेच दिया। माँ बाप ने कितने उम्मीद से अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया होगा। इतना नोबल पोजीशन पे पहुंचने पर भी अगर ये इंटेंशन ना हो कि मेरे से कोई भूल नहीं होना चाहिए, तो ऐसा सिटीज़न बनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, ऐसा अपना कॉलेज का एक ऐसा सॉन्ग आप लोगों ने चूज़ करने के लिए। और मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे से पहले सर ने बताया कि है कि मैं एक्चुअली मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और मैं लद्दाख जैसे बहुत ही दुर्गम क्षेत्र से इंडिया के टॉप जो है सबसे ऊपर के क्षेत्र से मैं आई हूँ। और आज जब मैं कल यहाँ पहुँची, मैंने सबसे पहले यही पूछा कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे मैं पहुँची हूँ। मैं 13,000 फीट ऊंचाई से आई हूँ, तो मैं यहाँ कितनी ऊंचाई पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं समुंदर से भी नीचे पहुँच गए हैं, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और यही हमारा डाइवर्सिटी है। इंडिया में बाहर से जो भी आते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि ये एक कंट्री है,
ऐसा लगता है एक कॉन्टिनेंट है। कई भाषाएं, कई जो है हमारे डाइवर्सिटी, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमें कितना कुछ देखने को मिलता है, कितने लैंग्वेजेस है, कितने हमारे वेशभूषाएं हैं, कितने हमारे खान पान है, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी जब एट द एंड अपने देश के ऊपर बात आते हैं तो फिर हम हिंदुस्तानी, हम इंडियन हो जाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और यहाँ आने का मकसद यही है कि वैसे मैं बुद्धिस्ट मेंबर के रूप में यहाँ पर नॉमिनेट हुई हूँ, लेकिन क्रिश्चियन मेंबर अभी नॉमिनेट ना होने के कारण हमारे चेयरमैन सर ने अभी 1 महीना पहले ही मुझे बताया कि मैडम आप क्रिश्चियन को भी देखो, क्योंकि उनका जो भी ग्रीवेंसेस होगा आप उनको थोड़ा करने की। स्पेशली मैं यहाँ पर मंगलुरु और बेंगलोर में इस बार आने का मकसद यही था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्या क्या ग्रीवेंसेस है, उनके कॉलेजेस में क्या क्या ग्रीवेंसेस है, चर्चेस में क्या क्या है, बाकी आम पब्लिक के क्या क्या ग्रीवेंसेस है, ये जानने के लिए मैंने इस बार का टूर प्रोग्राम मैंने बनाया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों के ग्रीवेंसेस होंगे फादर, अपने कम्युनिटी के लेवल पे भी या आपके कॉलेज लेवल पे भी, और इसके अलावा भी इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके पेरेंट्स के माध्यम से आप जान सकते हैं। आप बच्चे भी जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, बीइंग ए माइनॉरिटी हमारा कुछ राइट्स होते हैं। वैसे जो है 15 पॉइंट्स प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स प्रोग्राम माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। उसमें फर्स्ट से लेकर 13 तक तो 12 तक तो डेवलपमेंटल जो है चीज़ों पे है, और 13, 14, 15 ये 3 जो है हमारे सेफ्टी, सिक्योरिटी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देखने के लिए ये 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भारत में, हमारे पूरे इंडिया में, पूरे सिटीज़न के लिए 125 डिफरेंट स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बनाए हुए हैं। कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। जितने भी स्कीम्स भारत में बनाए हैं 125 स्कीम्स, वो सारे उनका लाभ भी माइनॉरिटी कम्युनिटी ले सकते हैं। और उसके अलावा बाकी आम लोग 125 स्कीम्स का फ़ायदा लेते हैं, और हम माइनॉरिटीज़ लोग प्लस वो 15 भी जोड़ के हम 140 स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन बीइंग ए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के मेंबर, मुझे भारत के विभिन्न स्टेट्स में जाने का मौका मिला। मुझे ये पता चला, ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि लोगों में अवेयरनेस कम है। स्कीम्स तो होते हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि स्कीम्स हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स बने हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या माइनॉरिटीज़ रिलेटेड स्कीम्स हो, इनके रिगार्डिंग बीच बीच में कॉलेजेस में, लोगों के बीच में, कम्युनिटी के लोगों को बुला के अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने की ज़रूरत है। और मैं वैसे भी कहीं भी पहुंचती हूँ, ये सबसे पहले हम कहते हैं, क्योंकि अभी तक 1.5 years में मुझे ये महसूस हुआ, अवेयरनेस ना होने के कारण बहुत कम लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा लेते हैं। एट द सेम टाइम आप बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बेशक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस कराना, लेकिन आज के दौर में डिजिटल ज़माना है और सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जानना चाहेंगे, गूगल सर्च करेंगे, सब कुछ आपको वहाँ नज़र आएंगे। डिफरेंट स्टेट्स में अपना अपना स्टेट्स का स्कीम्स बने होते हैं अलग अलग, उनके बारे में आप कर्नाटक स्टेट के क्या क्या स्कीम्स है आपको सब कुछ नज़र आएगा। तो उनके बारे में सर्च करने के आदत डालिएगा।
और आपके साथ जो कुछ भी होता है, या डिस्क्रिमिनेशन होते हो या डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ भी हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी हो, आप प्लीज़ अपने तालुका के, अपने डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से आप ज़रूर मिलिएगा। आप एक एप्लीकेशन, कुछ भी होता है, कुछ भी घटना घटते हैं, पहला कदम आप लोग एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को या डीसी को, डीएम को, अगर क्राइम रिलेटेड है तो आप पुलिस में एक कंप्लेंट ज़रूर देना, एक एप्लीकेशन अप्लाई ज़रूर करना होता है। उसका आप एक फ़ोटोकॉपी भी रखिएगा। वहाँ अगर आपके बात की सुनवाई नहीं होते हैं, आपने अप्लाई किया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं बना, तो एवरी स्टेट में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन भी बने हैं, वहाँ पे भी हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर कहीं भी नहीं होता है तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हमेशा आप लोगों के साथ है, ये एश्योरेंस आज मैं आप लोगों को दिलाती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को दिल्ली आके कंप्लेन देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हमारे पोर्टल पे जाके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। हम हर दिन ऑनलाइन कंप्लेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स को हम देखते हैं और हम उस पर रिपोर्ट लेते हैं डिफरेंट स्टेट से। इवन ज़रूरत पड़ने पर हम सुमोटो के ज़रिए भी सोशल मीडिया में एक्चुअली अगर कुछ होता है उसके ऊपर भी हम संज्ञान लेते हैं और कंसर्न स्टेट से, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से हम रिपोर्ट लेते हैं। तो जब तक हम जागृत नहीं होंगे, जब तक हम खुद अवेयर नहीं रहेंगे, जो कुछ भी होता है तो होता है, ऐसे हम बैठेंगे तो वो एक ऐसा ही प्रोसेस बन जाएंगे। अगर कुछ भी होता है उसके ऊपर हम जागृत होके हम कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, हम उसके ऊपर फॉलो अप करके उसके ऊपर अगर हम प्रोसेस कराएंगे तो कहीं हद तक, काफ़ी हद तक हर कोई जो है क्राइम को रोकने में हम सफल हो पाएंगे। तो आप लोग आने वाले फ्यूचर हो, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बाकी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से 101% में पूरा जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ को आपके हर ग्रीवेंसेस के बारे में लिखने के और उनसे संज्ञान लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा भी आने वाले समय में भी कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, बीइंग ए माइनॉरिटी अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, बीइंग ए माइनॉरिटी अगर आपको दबाने की कोशिश होते हैं, बीइंग ए माइनॉरिटी आपके जो है एरिया को डेवलप नहीं करा रहे हैं, कुछ भी हो, आप हमेशा, आप कभी भी आप लिख सकते हैं, कभी भी आप बोल सकते हैं। तो यही बोलने के लिए मैं आई हूँ और आप लोगों से सुनने के लिए भी मैं आई हूँ। कुछ भी आपके प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से नोट डाउन करके ले जाऊँगी। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ आज ही हम डिस्कस करके उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं है तो हम स्टेट लेवल पे ज़रूर लिखेंगे, स्टेट लेवल पे भी नहीं है तो हम नेशनल लेवल पे भी हम उसको लेकर जाके कंसर्न अथॉरिटी जहाँ भी बोलने की ज़रूरत है हम ज़रूर उस पर संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें सुनकर। एज स्टूडेंट्स हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपके द्वारा हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एज स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटीज़ हम जो हमारी एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट है वो है स्कॉलरशिप। जो हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। काफ़ी हद तक डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और भी ज़्यादा डिजिटलाइज हो। जब हम अप्लाई करते हैं उसके सर्वर ठीक नहीं होते, तो इसके द्वारा क्या हमें दूसरे एजेंट्स के पास जाना पड़ता है ताकि वो फिर वो हमसे पैसे लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर हम अप्लाई भी करते हैं और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम फॉलो भी करते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप का पैसा आता नहीं है उनके बैंक अकाउंट में। या बहुत बार ऐसा होता है कि अगर 14,000 मिलना होता है तो सिर्फ 4,000 आता है या 3,000 आता है।
तो बीच के जो एजेंट्स भी होते हैं या जो डिजिटलाइज हो सकता है, हम ये चाहते हैं कि वो ज़्यादातर डिजिटलाइज हो और जो बीच में जो भी मीडियम्स हो उसको ख़त्म हो और जो भी स्टूडेंट्स को जो भी ग्रीवियंसेस हो वो सॉल्व होके जितना पैसा सरकार से उनके बैंक के अकाउंट में पहुंचना है वो पहुंचे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। जैसे कि आपको पता है कि पहले अगर हम 20-30 साल पहले जाएंगे तो तब के हमारे सरकार खुद ही कहते थे अगर हम यहाँ से 100 रुपये बेचते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 रुपये बेनिफिशरीज तक पहुँचेंगे। तो ये पूरे भारत जानते हैं। लेकिन अभी डिजिटलाइज करने के बाद सीधा बेनिफिशरीज के अकाउंट में आते हैं। 100 रुपये अगर आपको असाइन करते हैं तो 100 के 100 रुपये बेनिफिशरीज के अकाउंट में जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 1400 रुपये अगर लिखा है तो उसमें 400 रुपये, अगर ऐसे कोई केस है तो स्पेसिफिक आप ज़रूर मुझे दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, हम ये मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे। ये क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई बीच में काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है। पहले होते थे जो है कैश ले आके, कैश जो है बाबू के ज़रिए किसी डिपार्टमेंट के थ्रू देते थे, वो अपना कुछ रखते थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट के पास जाते थे, वो अपना रखते थे। तालुका लेवल तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये में 10 रुपये ही आपके पास पहुंचेगा, ये पूरा पार्लियामेंट में अनाउंस हो चुका था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी 100 रुपये जाते हैं, मिडलमैन जो है बिल्कुल ख़त्म किया है। और मैं हैरान हूँ अगर आप कहते हैं कि 14,000 अगर आपका बनता है तो आपके अकाउंट में 4,000 आया। ऐसा है तो हम ये बात प्रधानमंत्री तक भी ले जाएंगे। आप ज़रूर मुझे दीजिएगा, ऐसा स्पेसिफिक इशू है तो आप ज़रूर दीजिएगा। आइंदा आने वाले समय में भी अगर ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं ज़रूर लिखिएगा। और बाकी रहा जो है प्रोसीजर, जितने भी हमारे जो है स्कॉलरशिप के स्कीम्स है, जितना हो सके इसको सिंपल करने की कोशिश किया है। इसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इनकम सर्टिफिकेट और ऐसे 2-3 चीज़ ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और ऑनलाइन प्रोसीजर है सब कुछ। आजकल सबको ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारे लोगों को आता है। आजकल छोटे बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इवन सबमिट तक वहाँ हो जाता है अपने ही मोबाइल से। अगर किसी को फिर भी दूर दराज के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डिजिटल इन चीज़ों को चलाना नहीं आता है, उनको मैं हमेशा जहाँ भी मैं जाती हूँ, जो हमारे कम्युनिटी के लोगों को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। हर कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, कहीं पर यूथ विंग, विमेंस विंग, फलाना ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स बॉडी, कितने हैं। लेकिन कम्युनिटी के लिए हम क्या करते हैं, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ फादर कि हम अगर ऐसा कोई है जिनको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होते हैं, हमारे यूथ वॉलंटियर्स आगे आ सकते हैं। हम कब तक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उंगली करते रहेंगे? हम कहीं ऐसे इलाके में जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है या जहाँ पे लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, 4-5 यूथ जो कर सकते हैं, 2 चेयर लगाओ, 2 टेबल लगा के वहाँ बैठ के, आओ भाई किसको प्रॉब्लम है, मैं फॉर्म फिलअप करके देती हूँ, हम आपके हेल्प करेंगे। महीना पहले हम उनको बोल सकते हैं आप अपना आधार कार्ड रेडी रखो, इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखो, बैंक अकाउंट खोल के रखो बच्चे के नाम पे, ये सब रेडी रखो और हम आपका फॉर्म भर के देंगे। तो ऐसा एक सेंस हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय नाम के स्पेलिंग मिसमैच हो जाते हैं, आधार कार्ड के नंबर अगर 1 डिजिट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं,
तब आपको फिर आपके जो है अकाउंट में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ये जब फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद जो है इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर उसको वेरीफाई करते हैं। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फिर वहाँ से सबमिट होने के बाद फिर मिनिस्ट्री में पहुँचता है। अगर फिर भी आपको लगे कि मैंने सब ठीक भरा है फिर भी नहीं आया, तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। कई बार होता है कि फॉर्म सब कुछ फिलअप करने के बाद भी किसी कारणवश नहीं आया, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एक नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कुछ भी, वो आप स्क्रीनशॉट लेके उसके साथ आप एप्लीकेशन लिख के आप देंगे, तो हम मिनिस्ट्री में पता करा के वो आपके मदद ज़रूर करने की हम कोशिश करेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ आप क्लियर हो गए होंगे। Continuing with his question, it is already digitalized. So an NSP or any other scholarship is digitalized. And one more thing is, whereas all our data is linked with Aadhaar, maybe license, everything, PAN card, bank accounts, certificates, all other certificates, and recently even the credit thing. So everything is linked to Aadhaar card. But again, when we have to fill our applications to NSP, there are a lot of things where we have to fill in. So since the accounts are already linked, and you mentioned of mismatch of Aadhaar number, and there is a system in other platforms where even for the Aadhaar verification, they send a OTP and we give the OTP. So there won't be a mismatch of Aadhaar number. Even if there is a mismatch of Aadhaar number, the OTP goes to some other number. So if having so many things, why still there are mismatch, and why these things, and also why there is a need to fill so many things? So that can be avoided and it could be made simple. क्या क्या भरना पड़ता है? आप इतना so many things आपको भरना नहीं पड़ता है। Yeah, in NSP scholarship, which I tried last year, we have to fill marks of 10th as well as PUC. We have to fill our religion. There are many procedures, and there are some things it is also, I forget now, but which is confusing for us itself. So that could be avoided, I feel. मार्क्स आपको भरना, अगर NSP के स्कॉलरशिप में भरना पड़ता होगा, उसका एक क्राइटेरिया रखा है कि आपको प्रीवियस उसमें कितना परसेंटेज आया है, वो सब भी तो आपको करना पड़ेगा। वो एलिजिबल तो आपको होना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वो तो फुलफिल आपको करना पड़ेगा। वो किसी भी, आपको सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं है, उतना सिंपल भी नहीं कर सकते हैं। आज से पहले, इससे पहले जब पहले होते थे, एक बच्चे 4-4, 5-5 स्कॉलरशिप के फ़ायदा लेते थे, इतना डुप्लीकेसी होते थे। जो मैं बोल रहा हूँ कि उस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो है अभी ये आधार कार्ड वगैरह ये सारे चीज़ें किया है। अभी अगर आप मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप माइनॉरिटी से भी बिलोंग करते हैं और अगर आप ST से भी बिलोंग करते हैं, तो दोनों चीज़ों का फ़ायदा आप नहीं ले सकते हैं। एक ही स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसीलिए ये सारा जो है डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। और बेशक आपने अपना लिंक करके रखा होगा, लेकिन स्कॉलरशिप पोर्टल पे फिर डालेंगे, वो तो आप जब भी किसी भी चीज़ को आप अप्लाई करते हैं, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपको डालना पड़ेगा। आजकल हर चीज़ फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने अपना उसमें पोर्टल में रखा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर भरना पड़ेगा और अच्छी तरह से भर के आपको जो भी बेनिफिट लेना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए तो ये कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, इसके बगैर नहीं होगा। So now I call upon Reverend Father Dr. Praveen Matis SJ for the presidential remarks. Respected Srimati Rinchan Lamo, the Honorable Member, National Minority Commission, Dr. Alvin Desa, the Registrar, the distinguished guests of the days, and my dear students. We had a wonderful interaction and also excellent address by Srimati Rinchan Lamo. I must truly appreciate for the time she has taken to come to Bangalore from Ladakh all the way. As she says, she has taken time to come to
our land in Mangalore. We are really honored to have you with us, madam, and for having such a wonderful interaction and taking time to spend with our institution. I'm here from last 8 years. This is the first time I hear somebody is coming to this place as a honorable member of National Minority Commission. That only says or shows how much concern and care she has for the minorities. Though she was appointed only in 2021, that she has made to come here, we are really honored and we are really proud of you. And also pray that you may have a great success in your office. We in Mangalore, there are students from various communities, as Dr. Alvin Desa, Registrar, said, is the mini India. People from all over India are here, people from all religion, creed and caste, all of them mingle beautifully. The campus is in a way with the high respect that people live here as a faculty, as a student member. So we are extremely happy that you are coming here to address these issues. I'm sure your courage, the way you address the issues of the students and the way you said it, that we felt so courageous and no fear at all, isn't it? Students, I'm sure with the way she explained things, and also she has given us the email ID, she will give it to me. I'll see that it is passed it on to all the students. And if you have any concerns or any grievances, kindly address the issues. See, that is where we need to take courage. The problem with us is sometimes we are ignorant. We don't even know, we are not even aware of it. There are so many schemes for the minority students, and very few minority students know about these schemes. So what we'll do is we'll also find out all those schemes and also put it across. Other than Google to the students, I will make a small committee of the students from different backgrounds and religions so that it reaches all the students, and see that you also take all the advantages in a way, know what are those schemes, and they all reach you. Because we are all here for one purpose. And I am so happy to also inform Madam and the distinguished guests here. There was a father here, Father Jerome D'Souza from Mulki, our own area. He was the interim parliament member, and we have also brought a book about him. He was a principal at St. Joseph's College, Trichy. He was a principal at Loyola College, and also very closely associated with the first members of the parliament. And he was the one who strongly supported the minority rights. And we will be very happy to also give you that book. It was recently published from our college. He was a student of this college. He studied here. We are extremely happy to know that such a great contribution also was rendered from this part. There are 5 people from Mangalore were present in the Minority Commission at that time itself when we got the independence. That's a proud moment for all the Mangaloreans to know that we took part in such an important exercise. And coming back here again from Ladakh, I'm sure our students who listen here also try to serve this nation. That is very, very important. It's not enough just to receive things from the people who work very hard for us. Rather, you also should think tomorrow that you also become member of such honorable commissions, and also see that the real rights and also privileges that belong to minorities reach. Because, yes, we have such a wonderful constitution. I don't know how many of you read in the entrance of the admin block, we have put the preamble there very clearly to understand that we belong to India. And India always takes pride in diversity. That all of us have a stake in it, and especially minorities have been privileged in a way to protect it by this preamble as well as the constitution. So we must become aware of it. We should not get frightened. Only when we become more and more frightened, the others will take control of the situation. There are in society, as Madam said, there are good people in both, in the majority as well as in the minority. We need to identify them and see that the people who take advantage in such kind of situations should be eliminated, in the sense should be brought to the police, and also the law should take care of it, so that we all live in a very peaceful atmosphere in India. I think that is the
real understanding of this commission. And Madam is giving her heart and soul into it, being a Buddhist community. I know I've been at Dharmasala and various places along with the Buddhist community and the Tibetan community, and we all have a high respect for the work that you've been doing for India. We continue to pray and see that we all work together for one cause, that is Constitution of India, and also the cause of the minorities in India. I thank you once again and thank all the committee members, all those who come here, the distinguished guests along with her, to spend time with us and also encourage our minority communities to do well in the future. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. God bless you all. Thank you, Father, for your presidential remarks. Words of gratitude from Dr. Sana Sheikh, Department of Zoology. Respected dignitaries on and off the days, it's my privilege to deliver a hearty vote of thanks on behalf of the organizers and the entire fraternity today. I extend my heartfelt gratitude to the most esteemed guest, Srimati Rinchen Lamo, Honorable Member, for gracing us with her presence. Your insightful words have indeed illuminated the path towards positive atmosphere for a harmonious future. It is an honor to have you and your team here with us, and we truly appreciate the time and attention you've dedicated to all of us. Thank you, ma'am. A special note of thanks to our rector, Father Melvin Pinto SJ, whose support has been instrumental in bringing positive impact on our institution. Our sincere thanks to our principal, Reverend Dr. Praveen Martis SJ, for the outstanding leadership and commitment towards upliftment of society. Thank you, Father. I would also like to extend a heartfelt gratitude to our distinguished registrar, Dr. Alvin Dessa, block directors, heads of various departments, faculty members, for the motivational support and enormous cooperation. We have been fortunate enough to be backed by amazing organizers. Without them, this wouldn't be a great success. I thank the compeer, Dr. Anup Denzil Vegas, prayer team, vibrant student participants, members of Students' Council, organizing faculty members, media, maintenance, and technical staff. Once again, I express my gratefulness to each and every participant for being the cornerstone of success. Thank you. As a token of our gratitude and the remembrance of visiting St. Aloysius College Autonomous on this beautiful day, I request our principal to hand over a book to Srimati Rinchen Lamo.